Hello students, this is our 14th lecture of manufacturing technology in which we study टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। तो टेलर ने टूल लाइफ के ऊपर एक इक्वेशन दी है जिससे कि हम वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ कट, कितनी वेलोसिटी से हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है, और जो मशीन जो टूल की लाइफ है, कितने टाइम तक टूल चलेगा, उन दोनों के बीच में एक इक्वेशन दी है। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। Where and hence tool life of any tool for any work material is governed mainly by the level of machining parameters, that is cutting velocity, feed and depth of cut. T. Cutting velocity affects maximum and depth of cut affects minimum. The usual pattern of grow of cutting tool wear mainly VB principle of assessing tool life and its department on cutting velocity are schematically shown in below. This is a diagram जिसमें हमें दिखाया गया है कि टूल लाइफ कैसे कैसे अफेक्ट होती है विद वेलोसिटी। सी देखो यहाँ पे C1 दिया हुआ है, वेलोसिटी VC1, कटिंग वेलोसिटी 1 है, एक कटिंग वेलोसिटी 2 है, कटिंग वेलोसिटी 3 है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 सबसे कम है, 2 उससे ज़्यादा है, 3 उससे ज़्यादा है, 4 उससे ज़्यादा है। इस तरह से हमें दिखाया गया है T1, T2, T3, T4, ये सब टूल लाइफ्स हैं। और टूल लाइफ पर्टिकुलरली जहाँ पे टूल लाइफ और ये वेलोसिटीज़ कर्व एक जगह पे मिल रही हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन से अगर हम मिलाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे आके मिलती हैं। तो इस तरह से ये होता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। द टूल लाइफ obviously decreases with the increasing of cutting velocity, keeping other conditions unaltered in as inclined in figure 5.1 1.5.1. If the tool lives T1, T2, T3, T4, etc. are plotted against the corresponding cutting velocities V1, V2, V3 and V4 as shown in figure below, a smooth curve like a rectangular hyperbola is found to appear. When F W Taylor's plot the same figure. F W Taylor is the name of scientist who gives the Taylor's equation. He was a mathematician. Taylor plotted the same figure taking both V and T in log scale or more distinct linear relationship appeared as schematically figure given below. तो पहला तो टेलर टू लाइफ इक्वेशन दी गई है, फिर उसे लॉग में लिया गया है, लॉग वीजी और लॉग। तो ये जो कर्व रेक्टेंगुलर पहला पैराबोला बना हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है लॉग में विद द स्लोप एन एंड इंटरसेप्ट पी। टेलर ड्राइव्स द इक्वेशन एज वी सी टी की पावर एन इज इक्वल टू सी, where n is called Taylor's tool life exponent. The value of both n and c depends mainly upon the tool work, material and cutting environment. The value of c depends also on the limiting value of Vb. There is also another equation, modified Taylor's equation. This is given below. Now we comes to modified Taylor's equation. In Taylor's tool life equation, only the effect of variation of cutting velocity Vc on tool life has been considered, but practically the variation in feed F and depth of cut T also play a role on tool life of some extent. Taking into account the effects of all those parameters, the Taylor tool life equation has been modified as given below. That is Tc is equal to Ct upon V to the power x, F to the power y and T to the power z, where T equals to tool lives in minute. Ct is equal to Ct is a constant depending mainly upon the tool, work material and the limiting value of Vb. Undertaken x, y and z exponents, so called tool life exponents,
exponents depending upon the tool life, work materials, and the machining environment. Generally, x is greater than y is greater than z. Vc affects the tool life maximum and T minimum. The value of constants Ct, X, Y and Z are available in machining data handbook और can be evaluated by machining test. मेनली जब भी इन पे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है तो अगर हम सिर्फ टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन के लिए या तो सी दे रखा होगा या एन दे रखा होगा। अगर सी और एन दोनों ही नहीं दे रखे हैं तो हमें दो कंडीशंस दे रखी होंगी, एक वेलोसिटी पे टूल लाइफ ये है, दूसरी वेलोसिटी पे टूल लाइफ ये है, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी होगी। अदरवाइज़ एन की वैल्यू दे रखी होगी, एक वेलोसिटी एक टूल लाइफ दे रखी होगी, दूसरी वेलोसिटी दे रखी होगी, तो उस पर टूल लाइफ पूछा जाएगा। क्योंकि दोनों दोनों अगर मान लो V1 दे रखा है, T1 दे रखा है, N दे रखा है, V2 दे रखा है, T2 दे रखा है और N दे रखा है, ये भी N1 और N2 हो सकते हैं। हो सकता है अलग अलग वेलोसिटी पे N की वैल्यू भी अलग अलग हो, लेकिन जो भी है V1 T1 की पावर N भी C होगा और V2 T2 की पावर N2 भी C होगा। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है दोनों को बराबर करके। तो अगर कोई भी एक पैरामीटर अननोन है हम उसे निकाल सकते हैं, बाकी पैरामीटर अगर इक्वेशन में दे रखे हो। लेक्चर में हम इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी इफ़ेक्ट ऑफ टूल ज्योमेट्री ऑन टूल लाइफ। तो टूल ज्योमेट्री का टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? द टूल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय टूल ज्योमेट्री। द नोज रेडियस टेंड्स टू इम्प्रूव द टूल लाइफ एंड इज एविडेंट फ्रॉम द रिलेशन वी टी की पावर 0.0927 इक्वल्स टू 331 आर टू दी पावर 0.244। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी वैल्यू इसी तरह से होती है, लेस देन 1 होती है ऑलवेज। इफेक्ट ऑफ साइड कटिंग एज एंगल ऑन टूल लाइफ। साइड कटिंग एज एंगल जो होता है उसका टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है आगे हम ये पढ़ेंगे। द साइड कटिंग एज एंगल मे इम्प्रूव टूल लाइफ अंडर नॉन चैटर कंडीशन। तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है वी सी टी टू दी पावर 0.11 इक्वल टू 78 इंटू 1 प्लस 15 टू दी पावर 0.0268 inside bracket. Tool life in terms of metal removal. The volume of metal removal from the workpiece between tool sharpening for defining depth of cut, feed and cutting speed can be determined as follow the example. For example, in case of turning, cutting speed Vc is equal to pi dn by 1000 mm per minute, where d is the diameter of workpiece, n is the rotation speed of the workpiece। तो कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है हमेशा पाई डी एन बाई 1000 एंड टी इज़ द डेप्थ ऑफ कट, एफ इज़ द फीड रेट, टी एफ इज़ द टाइम ऑफ टूल फेलर, टी इज़ द टूल लाइफ इन 1 mm स्क्वायर ऑफ मेटल रिमूवल। वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड पर रिवोल्यूशन होता है वो पाई डी टी एफ। पाई डी इज़ द सर्कमफेरेंस, टी इज़ द डेप्थ ऑफ कट, तो ये हो गया एरिया, और फीड यानी कि जितनी डिस्टेंस पे हम चल रहे हैं वो मटेरियल रिमूवल पर रिवोल्यूशन हो गया। वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड पर मिनट। अब जो हमने वो पहले निकाला था पर रिवोल्यूशन निकाला था, अगर हम उसी को आरपीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है पर मिनट, पर रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, मिनट नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड इन टी एफ मिनट, यानी जब तक वो फेलियर होगा तब तक कितना कर लेगा। 1 मिनट में हमने निकाल लिया कि कितना मटेरियल रिमूव करेगा। अब उसे अगर हम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हम निकाल सकते हैं कि कितना किया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड बिटवीन टूल ग्राइंड्स इज इक्वल टू पाई डी टी एफ टी एंड टी, वेयर जो पहला टी है वो थिकनेस है, डेप्थ ऑफ कट है, और जो दूसरा टी एफ है वो फेलियर तक टाइम है उसका। तो पाई टी इज इक्वल टू पाई डी टी एफ एंड टी एफ एम एम स्क्वायर बराबर पाई डी टी को हम लिख सकते हैं 1000 वी सी टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू वी सी टी एफ सेंटीमीटर स्क्वायर।
1000 के मल्टीप्लाई करके हमने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग टूल लाइफ. द लाइफ ऑफ टूल कटिंग इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. नंबर 1 is cutting speed, feed and depth of cut, tool geometry, tool material, cutting fluid, workpiece material, rigidity of work, tool and machining. Okay, thank you.